Hello, everyone. Welcome back to Tradomaniac. The reason why I'm so excited and the reason why I've come live, uh, I don't even know if there'll be a single subscriber or viewer right now because I've just started my channel a week ago. So I don't know if there is anyone watching this, but very honestly, it does not matter, right? It does not matter if someone is watching or not. Um, the reason being, Uh, I have had a tough journey for the last 3.5, 4 months. Um, if those who, for those who have watched my previous videos, you guys would have known, or you would have heard from me. You would have seen my profit and loss that I made in options trading. I had made a total loss of around 50,000. I had made a loss. I mean, I was doing good in the first month, first 1.5 months, but then um, I had booked a loss of 30,000 in a single day. All right. I mean, it was not a loss that I had made on a single day, but it was multiple trades that I had held. I had not exited, and my entry exit was not correct. I made some mistakes. I was hoping that I would um get, I mean, that trade would, or those trades rather, would turn in profitable, but it did not happen. I waited. I had hopes, and those hopes, um, they, like I said in my previous videos, hope is a killer. So it almost killed all my dreams of making profits. And I had a target of making a certain amount of profit every single day. I wanted to start with 1.5k, then 2k, and then 5k. So I reached 1k, 1.5k, even till 2k. But when I was supposed to reach 5k, um, things came crashing down, and there was a point where I was holding a loss of 30,000 and I had booked that loss. Okay. It was a very tough day for me. Um, After so much of studies, I had studied trading. I had done a couple of courses, um, technical analysis. I had learned options trading, futures, whatnot. But still, when I made such a big loss, and then when you log in to your broker panel, you see a message. It's a pop-up, usually on mstock or zerodha. तो वहाँ पर दिखता है आपको कि it says कि 90%, 95% of traders in futures and options make losses. uh, Losses up to 50,000, and those who are profitable, I mean, pay 70% or 60% of whatever they've earned in brokerage and other charges. So when I read that and I saw my PNL, it was minus 50,000. I was disheartened because I I ended up in that category, and I did not like it one bit. Anyway, um, all things said and done, I after that I went slow. Okay, I came back to 40k. I mean, I had recovered 10k from that. Then I recovered 20k. There was even a point, and I was very happy. Okay, because it happened twice. I had recovered half of it from 50 or 52,000 loss. I had recovered and had come down to 25,000 loss. Okay, so I had recovered half, but I don't know what happened. After that, I made more mistakes, and I ended up making more losses. Right. Anyway, 1 second, guys. I think something is wrong here. Uh, I don't know why. It looks like TradingView is probably not working because, okay, I don't see any movement in charts. Let me do one thing. Let me just restart my TradingView. फॉर अ सेकेंड मैं डर गया. मुझे लगा यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बंद हो गया और मैं ट्रेड्स होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, बट ऐसा नहीं है. समथिंग एल्स वाज रॉन्ग.
ओके लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स सी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सो इट लुक्स लाइक ट्रेडिंग व्यू मेरा अटक गया था। मैं वही सोचूं यार, यहाँ पर कोई ट्रेड मतलब कुछ मूवमेंट कहीं हो नहीं रहा है, क्यों हो नहीं रहा है पता नहीं। एनीवे, so the reason why I'm making this video right now and why I'm coming live is after 4 months of hard work, after 4 months of pain, I would say after 4 months of pain, I'm finally, at a level where I am, about to become profitable. Okay, I I've still not I am still not profitable. I'm little far away from being profitable. But for those who are watching, you know, I, I see there is there is one viewer right now. Whoever you are, thank you so much for joining in. And I wanted to just share this live. Instead of making this video, pre-recording it and then posting it. One second guys. Okay, all right, sorry guys. So the reason why I came live is that I'm about to be profitable. Fingers crossed. I'm still not there because okay, I'll show you what. I'll show you something. First of all, हम लोगों ने जो ट्रेड्स लिए थे और जो लाइव ट्रेड्स थे, सुबह का जो अपडेट था वहाँ से I'll carry on. तो वेदांता, ओके यू गाइस मस्ट नो दैट वेदांता में हमने एक ट्रेड लिया था. वो तो मतलब लाइव था. आई हैड बुक द प्रॉफिट देयर वट एवर इट वॉज. उसका भी रीज़न बताता हूँ. लेट मी जस्ट गो टू वेदांता. ठीक है. या फिर एक काम करता है, आई विल शो दोस थिंग्स टू यू, लेकिन उसके पहले मैं आपको द रीज़न वाई आई एम लाइव, लेट मी कम टू दैट पॉइंट फर्स्ट. ओके, उसके बाद वील वेट. देयर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ वेट दैट आई नीड टू डू. तब तक मैं आई जस्ट शो यू ओके व्हाई वी आर लाइव. ऑलराइट, सो पहले मैं दिखाता हूँ मेरा पीएनएल. सुबह भी मैंने दिखाया था, फिर से मैं एक बार मेरा पीएनएल दिखाता हूँ अभी तक का. For whoever is watching live and whoever is watching this after this video is recorded and uploaded, and if you are in that position, if you are in the situation where you have been doing everything you can, you have been spending time and money and energy, had sleepless nights, अगर आपका लॉसेस हुआ है, आपको हर जगह से आपको परेशानी हो रही है, घर पे बता नहीं सकते, आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस भी है अपने ऊपर, आपको दिख रहा है कि आप जो सोच रहे वो होता है, लेकिन आपका एंट्री एग्जिट गलत है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो आप सब लोगों के लिए नेवर लूज होप. ओके, नेवर लूज होप. ओके, सो कमिंग टू माई पीएनएल, ये मैंने दिखाया था मेरा सुबह का सिचुएशन. आई हैड बुक्ड, ओके आई विल कम टू दैट. मैंने बोला था मैं शायद बुक नहीं करूँगा, बट आई हैव बुक्ड. आई टेल यू व्हाई. साथ साथ मैं आई विल शो यू माई पीएनएल रिपोर्ट फ्रॉम Zerodha. This was M stock. I will show you Zerodha. ओके, ये Zerodha. ठीक है, इसको हम थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं. सॉरी गाइस, 1 सेकेंड, थोड़ा बराबर से देखिए. हाँ ठीक है. ओके, इन केस यू कांट सी, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ. ठीक है. So here I'll go to futures and options. I took my first trade on September 1st. Okay, on 228. ठीक है, ये है FNO का. This is in stocks and Nifty. बैंक निफ्टी वगैरह मैंने नहीं किया है ट्रेड उसमें, और इवन नॉट इन क्या कहते हैं, सेंसेक्स में भी मैंने ट्रेड्स नहीं लिए. So just Nifty and stocks, mostly stocks, 95% stocks. And then this is my P&L
फ्रॉम 3 महीने कोई कुछ भी पकड़ लेके आएगा, बिकॉज मैंने पहले ट्रेड ही एम स्टॉक पे बहुत लेट लिया है, 1 महीने पहले करीबन, नॉट इवन 1 मंथ, 15-20 days ago. Anyway, so you see here minus 32,000 realized P&L. This is in equity. M stock पे सिर्फ मतलब सॉरी ओनली स्टॉक्स एंड इंडेक्स, दैट इज निफ्टी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यही दो ऑप्शन है. दे डोंट हैव कमोडिटीज़ और करेंसी ऑन एम स्टॉक. एंड ये है स्टॉक्स एंड निफ्टी का ऑन ज़ीरो था. ठीक है, तो -40.2 के, तो सॉरी -40.21 के, एंड यहाँ पर है -32,000. सो अगर हम लोग सब मिला के देखें तो आई हैव पुट इट इन एन एक्सेल फाइल ऑलरेडी. आपके सामने मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, हियर यू गो. राइट, सो ये है -32,197 ऑन एम स्टॉक, देन -40.2 के, सॉरी 4021. ओ ठीक है, ये है ज़ीरो पे. और कल तक का कमोडिटीज़ में जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था वो भी दिखा देता हूँ. दैट वाज 42.61, तो विच इज़ 42610. तो ये है सब जो मैंने अभी तक का बुक किया हुआ था टोटल. -29, आज सुबह तक मैं -29,797, मतलब 30,000 पकड़ दे, 30,000 लॉस पे मैं बैठा था. आज दिखाता हूँ मैं फिर क्या हुआ. होता है ये, ओके. It could have been the other way around too, but when you are consistent, slowly you will get a hang of it. You may see, or mostly from what I've heard and seen, most people say that they have made the most of their money from a few stocks or a few trades. Okay, बाकी सब ट्रेड्स में कंसिस्टेंटली थोड़ा पैसा आता है, और कुछ ट्रेड में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है. तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ है. अगेन, while I'm talking to you, I'm still close to getting profitable. I'm not profitable completely yet, but I wanted to share this with you guys while I'm almost about to be profitable. I'm not trying to celebrate too soon, but I did not want to even keep this to myself. So I thought since I have a YouTube channel, I've made it for people who are new, who want to learn, or who already have knowledge and have been trading, but have had ups and downs. Sometimes are disappointed or disheartened. So it may cheer someone up, give hope to someone. Not hope really, but motivate someone. ठीक है. So what we did is, आज का situation दिखाते हैं. Today I had taken a trade. So yesterday, actually yesterday, or I think on Friday, I had taken a trade in Vedanta, then in Tata Steel. Okay, Tata Steel. जो आप लोगों को मैंने यहाँ भी दिखाया, जो मैंने बुक भी किया था. ओके, सो टाटा स्टील एंड वेदांता मैं बुक करने नहीं वाला था. आई वाज गोइंग टू वेट, बट देन आई सॉ गुड मूव्स इन some other instruments. Okay, so and I wanted to release funds from my existing positions to get into better trades. तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया. मैंने गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में पहले तो ट्रेड लिया था. कल भी नहीं, फ्राइडे को लिया था. सुबह की वीडियो में मैंने बताया कि -4,000 पे चल रहा था लॉस में. ऑन फ्राइडे आई हैड नॉट बुक, बट एंड ऑफ डे ऑन फ्राइडे इट वाज -4. बट एक्सपायरी कल की है 29 की, एंड आई न्यू कि डी के मेरे फेवर में है. सो आई केप्ट दैट ट्रेड. प्लस गोल्ड इज बुलिश. आई एम बुलिश ऑन गोल्ड. एवरीवन इज बुलिश ऑन गोल्ड these days, for obvious reasons. There are uncertainties around the globe, and silver, gold, other commodities, they act as safe havens. तो लोग उसमें शिफ्ट करते हैं अपना funds. That's what has happened on a bigger level too. And then there are many other geopolitical reasons. Countries want to devalue the USD and come back to gold and things like those. Anyway, we don't want to get into details there. तो पॉइंट ये था कि गोल्ड मैंने होल्ड किया था. गोल्ड में कल तक कुछ 5,000 प्रॉफिट भी हो गया था, एंड मैंने बुक भी किया था. बट देन आई टुक अनदर ट्रेड कल. ओके, देन एंड आई केप्ट दैट. मैंने होल्ड किया. आज सुबह उसमें मुझे
13,300 का प्रॉफिट हुआ सुबह सुबह। एक्चुअली 13,300 नहीं, सॉरी 11,300 नहीं, 13,300 था ये। बट देन मैंने एक दो और ट्रेड्स लिए एंड आई मेड अ स्मॉल लॉस, तो थोड़ा कम हो गया वो। आई शो द एंटायर पिक्चर। ये रहा करंट स्टेटस, ठीक है। दिस इज़ द हाइएस्ट प्रॉफिट दैट आई हैव मेड इन अ डे, नॉट द बुक्ड वन बट बुक्ड प्लस अनबुक्ड। ओके, ये देखना आप, मैंने यहाँ पर गोल्ड में ऑलरेडी एक बार प्रॉफिट बुक कर दिया था। ये था करीबन 13,500 सुबह सुबह, गोल्ड का चार्ट भी देखेंगे। एंड इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो पॉसिबल था वो था 15,000, 15,500, और मैक्सिमम प्रॉफिट 15,000 और मैक्सिमम लॉस आई थिंक 14,500। आई वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू 14,000, 13,500 हो गया था, तो मैंने वो लॉस प्रॉफिट बुक कर दिया 13,500। एंड अगेन कल एक्सपायरी है, तो मुझे पता है, मुझे अगेन डीके मेरे फेवर में है, तो मैंने फिर से एक ट्रेड उसमें खड़ा कर दिया, जिसमें अभी वो चल रहा है, अभी इसमें 7,000 प्रॉफिट चल रहा है। अगेन इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो है, मैक्सिमम प्रॉफिट 11,800, मैक्स लॉस 18,000। बट मैंने नीचे का पुट बेचा है, 1,62,000 का पुट मैंने बेचा है, उसके काफ़ी ऊपर है, 3,000 पॉइंट ऊपर है उसके। सी इट्स एट 165, सो नथिंग टू वरी। एक ही दिन में 3,000 का ड्रॉप आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे विद द करंट मार्केट ट्रेंड, और जिस तरह से बुलिश है गोल्ड, तो दैट्स देयर। आई बुक्ड 13.5, ये साथ चल रहा है, तो टोटल 20,000 अभी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, देन आई हैड टेकन अ ट्रेड इन ये नेचुरल गैस का, तो ट्रेड मेरा ये भी 2-3 दिन से चल रहा है, आई थिंक लास्ट थर्सडे समथिंग। उसमें भी मैंने कुछ अभी किया नहीं है, मैंने कोई प्रॉफिट लॉस बुक किया नहीं है, बिकॉज ये भी मैं आई एम स्टिल बुलिश ऑन नेचुरल गैस। ऑल्दो यूएस में अभी थोड़ा वेदर ठीक हुआ है, और ग्लोबली भी वहाँ के प्राइजेस का इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी हुआ है बुलिश, यहाँ भी था नेचुरल गैस, एंड देन इट्स स्लोड डाउन। बट मैंने होल्ड किया, क्योंकि चाहे वो माइल्डली बुलिश है बट है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। ये इनफैक्ट आज सुबह तक तो -1,000 तक कुछ था, बट अभी 2,500 प्लस हो गया, विच आई विल बुक दिस प्रॉफिट मोस्टली। देन निफ्टी, अभी निफ्टी में एक जंप आया था, इफ यू सी लास्ट के 1-2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में यहाँ पर एक जंप आया था। मैंने थोड़ा मिस कर दिया वो, सुबह भी मैंने बताया था, आई मिस्ड द बस एक्चुअली। मैंने तब देखा, मुझे पता था कि इस लेवल के आसपास से करीबन वो जंप आएगा। ओके सी, बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो आई वॉज गोइंग टू टेक अ ट्रेड समवेयर हियर, अगर वो बाउंस बैक आता है आइदर हियर, या फिर अगर नीचे जाके बाउंस बैक आता तो मैं यहाँ पर कहीं लेता, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरे ट्रेड्स में था, तो आई डिड नॉट सी एंड आई टुक अ ट्रेड थोड़ा सा ऊपर, सॉरी माय बैड। हाँ, आई हियर नॉट द हियर बट हियर, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, बिकॉज ये रेजिस्टेंस लेवल है R1 पिवट लेवल, उसके वहाँ से उसने जंप किया था विद अ फ्यू विक्स। ओके, और एक डोजी भी बना था, तो सी दिस इज़ नॉट रियली अ मॉर्निंग स्टार, ओके, बट सिमिलर एक पैटर्न बन रहा था वहाँ पर, तो आई टुक अ ट्रेड। एनीवे, थोड़ा सा नीचे आया वापस से, तो मैं इधर डर के मारे मैंने एग्जिट मार दिया 2,200 का लॉस पे। नहीं किया होता तो आई कुड हैव मेड अ प्रॉफिट। एनीवे, दैट्स फाइन, छोटा मोटा लॉस होता भी है कभी कभी, आपका एंट्री एग्जिट, चाहे आपका बायसनेस सही हो, लेकिन आपका अगर एंट्री एग्जिट गलत है तो आप लॉस कर सकते हो, विच हैपेंड इन दिस केस। एनीवे, आई फॉरगॉट अबाउट इट। देन मैंने देखा कि मैंने अभी 13,500 और ये 11,500, इसमें से -2, तो करीबन 11,500 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो आई वेटेड फॉर सम टाइम एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड ट्रेड। वहाँ मैंने देखा कि पहली बात तो वेदांता में मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरा पॉसिबल था वो था 5,000 का, और वहाँ पर 10,000 का, और वहाँ पर 5,000 कुछ हो गया था। तो मैं वैसे भी एग्जिट करने का सोच ही रहा था, आई वॉज जस्ट वेटिंग इफ टू सी इफ देर इज़ अ बेटर ट्रेड। तो मुझे, और यहाँ पर निफ्टी में मुझे ट्रेड मैंने जो लिया था, मतलब मिला मुझे, और जो मैंने लिया उसमें प्रॉफिट हुआ नहीं, तो आई वेंट टू स्टॉक्स। मैं सारे स्टॉक्स देख रहा था, सारे मैं सेक्टर्स देख रहा था कहाँ पर क्या चल रहा है, एंड आई सॉ कि निफ्टी डिफेंस में एक तगड़ा सा मूवमेंट आया, अच्छा सा मूवमेंट आया। आई वेंट टू डिफेंस स्टॉक्स एंड आई फाउंड कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पागलों की तरह ऊपर भागा। इट वेंट अप बाय अराउंड, sorry for the background noise guys, it went up to 8.9% overall, ठीक है। So I took a trade somewhere here, I know it was a little late,
अगेन, बट आई टुक अ ट्रेड बिकॉज आज नहीं तो कल फिर से वो ऊपर आने वाला है. ओके, आज अगर थोड़ा मतलब आज तो ऊपर आए, कल या परसों तक फिर जाएगा, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक तो जाएगा ही, बिकॉज बजट आने वाला है फर्स्ट को. तो डिफेंस स्टॉक्स बुलिश होने वाले हैं एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द साइंस. सो आई टुक अ ट्रेड. प्लस उसका रिजल्ट आया था आज, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया. 23% रेवेन्यू में इंक्रीज था, 20% प्रॉफिट इंक्रीज था. तो अच्छा खासा उसमें मूवमेंट आया. सो आई टुक अ ट्रेड. वो मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी. आई विल शो दैट यू डू. गिव मी अ सेकंड. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक मैंने ऑलरेडी दिखाया, बट आई जस्ट शो इट अगेन. उसके आप लोगों ने देख तो लिया होगा क्या हो रहा है ये. एक मिनट. ठीक है. कहाँ गया मेरा. ओके, ये यू गो. सो दिस इज़ द स्टोरी. सो यहाँ पर वेदांता मैंने, अच्छा वेदांता में मैंने प्रॉफिट भी बुक कर दिया था 5,000 का, बिकॉज आधा जो मैक्सिमम प्रॉफिट उसका हाफ तक रीच हो गया था. तो आई थॉट आई बुक इट एंड आई टेक इट अगेन, टेक अ ट्रेड अगेन. कल मोस्टली ऊपर जाएगा वो, बट एटलीस्ट जो मुझे दिखा था प्रॉफिट उतना मैंने बुक कर लिया. 50% तक पहुंचा. तो अगर आप एनालाइज करोगे किसी भी स्टॉक के, स्टॉक तो नहीं है बट आई स्टिल एनालाइज. अगर एक ग्राफ, नो दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल. 1 सेकेंड. सॉरी गाइज. सो आई विल शो यू 1 सेकेंड. ये है कि ओके, हाँ फॉर एग्जांपल देखो, ये जब ग्राफ देख रहे हो इसमें यूल सी की जो सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर स्लो हो जाता है. आगे आगे जितना ऊपर जाता है स्लो हो जाता है प्रॉफिट, नीचे जाते तो लॉस स्लो हो जाता है. इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है करीबन. इस ये जो थोड़ा सा फ्लैट इंक्लिनेशन जैसा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट, जितना मूवमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस तरफ इस पे जगह पे होता है. तो 50% तक अगर आ गया तो बुक करना अच्छा है. एंड आई बुकड इट. 5,000 बुक किया, लेकिन फिर से मैंने पोजीशन खड़ा कर दिया उसमें, बिकॉज आई एम स्टिल बुलिश ऑन वेदांता, बिकॉज सिल्वर इज गोइंग, इट्स ब्रेकिंग हायर हाइज डे बाई डे. तो एनीवे, तो मैंने वेदांता में स्टॉक लिया, बिकॉज अगर सिल्वर ऊपर जाएगा तो वेदांता भी यूजुअली ऊपर जाता है. एंड ओवरऑल मेटल स्टॉक्स बुलिश है सारे. ठीक है, तो इट्स अ लिटिल सेफ ऑप्शन. प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स is also going to be bullish again with the budget and all coming. By the way, 1st of Feb Sunday is what do you call, is not an off. Okay, market चालू है. तो just अगर कोई देख रहा है तो 1st of Feb पे do monitor your trades. ठीक है. सो एनीवे दिस इज़ द सिचुएशन. ये मैंने 5,500 बुक यहाँ पर किया था, 11,500 यहाँ पर किया था. अभी जो चल रहा है वो है 12,000 प्लस, क्योंकि मैंने फिर से गोल्ड में ट्रेड खड़ा किया कल के लिए, बिकॉज कल एक्सपायरी है. आई वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द डीके एंड मोस्टली मैं बुक करूँगा बिफोर एंड ऑफ डे. अभी करीबन 10:15 हुआ है. बिफोर एंड ऑफ डे आई विल बुक द प्रॉफिट हियर, बुक प्रॉफिट हियर, एंड आई विल टेक अनदर ट्रेड सेम. अभी देखो 7,000, 10,000 का या 11,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, उसका 60% 70% तक अचीव हो गया है. तो वो मैं अभी बुक कर दूंगा आज. एंड आई विल टेक अनदर ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड. आई विल कीप इट टिल टुमारो. और मैं थोड़ा नीचे का ही पुट बेचूंगा, ताकि डीके एकदम मेरे फेवर में है. ओके, आई विल डू दैट. अगर गैप अप ओपन होता है तो इट विल बी इन माई फेवर. आई विल बुक मोर प्रॉफिट. मेरे 5-7 हज़ार शायद मैं और बुक करूँ कल, या 10,000 भी. आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ दैट गोज, बिकॉज आई हैव नॉट सीन द ऑप्शन चेन येट. वो मैं देखूंगा तो समझ में आएगा व्हाट इज़ अ गुड ट्रेड टू टेक. ठीक है. फिर आई बात, अभी ये मैं क्लोज कर देता हूँ. देन बात आती है क्रूड ऑयल. इसके बारे में हमने बात नहीं किया. क्रूड ऑयल में एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने गलती की यहाँ पर. नाउ इन क्रूड ऑयल आई वॉज बुलिश अगेन. इफ आई गो टू क्रूड ऑयल का चार्ट, ये देखो ईरान और यूएस का जो टेंशन वगैरह चल रहा है. सी दिस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. तो जैसे ये हायर लो आया उसके आसपास मैंने ट्रेड लिया. एक्चुअली वहाँ भी नहीं, मैंने कंसिडर कर लिया था कि लो है. आई शुड हैव वेटेड अ लिटिल, ठीक है. आई डिड नॉट वेट, इट्स फाइन. ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, मैंने थोड़ा वेट किया. ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस, ज़्यादा लॉस हुआ नहीं था. 1,500-2,000 तक का लॉस कुछ था.
विच एक्चुअली इज़ माई क्यू टू एग्जिट, बट मैंने एग्जिट किया नहीं, थोड़ा मैंने सोचा कि और होल्ड करता हूँ बिकॉज आई वॉज स्टिल बुलिश ऑन क्रूड ऑयल। उसके बाद देखना क्या मोमेंटम आया है। इट वेंट अप टू ईयर, यहाँ तक जब पहुँचा था मेरा 5,500 तक प्रॉफिट था, बुक किया नहीं मैंने, फिर इसके बाद नीचे आया। और हाँ, मैंने इसमें मेरे पास फंड्स सब ब्लॉक थे इन अदर ट्रेड्स, सो आई कुड नॉट रियली टेक बुल पुट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड, मुझे नेकेड ऑप्शन लेना पड़ा, तो आई हैड टू बाय अ कॉल ऑप्शन without any stop loss on. Okay, mind that. So no stop loss. I took a bull put. Sorry, I bought a call option. 5.5 तक गया था, मैंने बुक नहीं किया, नीचे आया, मैं डरा नहीं रुका, तो अभी वहाँ पर 2200 कुछ चल रहा है। थोड़ा और वेट करूँगा, या तो फिर ऊपर जाएगा तो नीचे। ये शायद ट्रेड डिसाइड करेगा कि आज प्रॉफिटेबल में बनूंगा कि नहीं, बिकॉज बाकी सब हो गया है। अभी आई एम नाउ आई शो द कैलकुलेशन कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। जितना मेरा लॉस था तो 50,000, उसमें से मैं करीबन 20,000 रिकवर कर चुका था, 22,000 21,000, और 29,000 मतलब ऑलमोस्ट 30,000 लॉस पे मैं बैठा था सुबह तक। आज के ट्रेड्स 5,500 मैंने बुक किया इन वेदांता एंड टाटा स्टील, 11,300 मैंने बुक किया गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में, एंड 2,200 लॉस हुआ था निफ्टी में लॉन्ग ऑप्शन मतलब बुल पुट स्प्रेड। और ये अभी जो है करंट लाइव 12,400 जो अभी हो गया है 12,224। तो अगर 12,200, तो अगर मैं 12,000 वही है, मतलब इतना ही अप्रॉक्सीमेटली है। तो करीबन 800,000 रुपये अभी भी मैं नीचे हूँ। अगर 800,000 रुपये मेरा मैं और बुक करता हूँ आज, तो आई विल फाइनली बिकम प्रॉफिटेबल आफ्टर 3.5 months ऑफ हार्ड वर्क एंड पेन एंड टेयर्स एंड वॉट नॉट। सो मैंने सोचा था कि I'll come live, और जब मेरा ये एक्चुअली प्रॉफिट इतना हो, जब मैं बुक करूँ, तो आई एम डूइंग इट लाइव, आई एम बुकिंग माई प्रॉफिट्स लाइव, एंड आई एम becoming profitable live on YouTube. But anyway, I'll just have to, I think, wait for a little more while. 1,000-1,500 की और बात है, I'll just wait. तब तक मैं काम करता हूँ। I'll book my profit or loss whatever I am at in gold mini futures. उसका रीज़न है मुझे फिर से एक ट्रेड खड़ा करना है। ओके, मुझे फिर से एक ट्रेड खड़ा करना है, तो इसके लिए आई विल हैव टू एग्जिट फ्रॉम हियर। गोल्ड ठीक है, gold mini futures MCX. All right, so this is where we are. So this is the whole reason why I've come live right now. 1,000-1,500 की बस बात है, and hopefully by God's grace I will become profitable today itself. अगर 1,000-1,500 और मुझे आज के ही दिन में मिल जाता है तो मेरे existing trade से. So I know a few previous videos are still pending, okay, which I am going to upload mostly today itself, so that previous story क्या था वो भी आप लोग को पता चले, you know, or else it will be very confusing, and you know some people may be blank, and I want to record this journey खुद से ही, मैं तो खुद से कर ही रहा था, but I wanted to record this for anyone who needs motivation, who needs help. I need motivation, I need help too. So it's going to be a symbiotic relationship between me and you guys. So I help you, you help me, and we'll grow together. So that's the purpose of making this channel. That's the purpose of me recording everything, including this video where I'm going live and almost about to be profitable. So I just have fingers crossed कि मैं आज ही profitable बन जाऊँ. अगर नहीं भी हुआ तो I'm sure it will happen by tomorrow. Okay, I trust in gold right now. I trust in gold. Okay, so that's it guys. I'll just book profits in what do you call crude oil futures. Okay, so I will just book profit in
gold mini futures, and probably natural gas or maybe even crude oil. देखते हैं how it goes, so that we are one step closer to being profitable, or just one step away from being profitable. Just एक 1000-1500 रुपये की बात होगी, and we will get that done in a day. Maybe today, maybe by tomorrow, but by tomorrow for sure. All right, so I'll see you guys hopefully again in the next video when I am finally profitable. It has been a great journey. So, but yeah, the journey has just started. हो सकता है कि इसके बाद फिर से भाई लॉस वॉस कुछ हो जाए एंड वापस से मैं प्रॉफिटेबल से लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाऊँ फॉर अ वाइल, बट अगर बना भी तो इट विल नॉट बी फॉर एवर एंड इट विल नॉट बी फॉर लॉन्ग, आई प्रॉमिस यू. So with that said, this is Tradomaniac signing off. Please do like my videos, subscribe to my channel, share them to someone who needs to watch this, and it also will serve as a reminder for myself to not get demotivated when you are not doing good. ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है, खुद पे भरोसा रखो, दिमाग का इस्तेमाल करो, एंड बाकी सब किस्मत की बात है. So I'll see you guys again. Thanks everyone. Namaste and have a good night.